अली अकबर जैदी साहब, आपका ताल्लुक 37 CTP से है। पाकिस्तान कस्टम सर्विस आपने ज्वाइन किया है। टेल अस अबाउट योरसेल्फ। I'm Ali Akbar Zaidi, 37th Common Customs, and I'm posted as Additional Collector Customs Appraisement Punjab. For an introduction, I would like to say that I started off my career as a mechanical engineer from UET Lahore. I worked for multinational corporation Toshiba. I've done my MBA from Lahore School of Economics. I have 14 years of service. I appeared in my CSS exam in 2008. I completed my CSA and STP in 2011, and since then I've been posted around different positions across Pakistan. I'm also a Chevening scholar, where I went to do my master's in public policy from England, and right now I'm serving in Punjab. So that's for the introduction. Tell us about Pakistan Customs Service. Pakistan Customs Service, as the definition goes, is the guardian of the economic frontiers of Pakistan. It sort of sounds very complicated, but if I would like to put it in a way, that Pakistan Customs has two distinct roles while guarding the economic interests of Pakistan. Number one is protection of the interests of the economy and chiefly imports and exports. And other than that is enforcement, where customs wears the hat of a law enforcement agency. So the primary responsibility of customs used to be the collection of taxes and revenue at import stage. And if I'm to give you a number, 52% of all federal budget is met by duties and taxes which is collected by customs. At the same time, the role of customs has now been enhanced to targeting anti-smuggling activities, stopping money laundering, and many other roles. So as a customs officer, you can wear multiple hats. You can be posted at a Karachi port looking at imports and exports. You can be posted as an anti-smuggling law enforcement agency officer working at Taftan, Turkham, Chaman, and you can be tackling smugglers as well as handling the Federal Chamber of Commerce and Industry. And on top of that, Pakistan Customs is not an organization that only works on a domestic basis. Pakistan Customs actively incorporates into its working the workings of World Trade Organization and World Customs Organization. So you see, there's three roles that we can identify. Number one is collection of revenue at import stage, enforcement function, and facilitation of passengers at airports and at other avenues. And Pakistan Customs is an organization that has jurisdiction across Pakistan from Gwadar to Azad Kashmir, having jurisdiction over not just land but also air and seas of Pakistan. जैदी साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान कस्टम सर्विस के अंदर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी के क्या डायनामिक्स होते हैं? इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि देखें, पाकिस्तान कस्टम्स के साथ आपका जो बहुत एक मेजर पोर्शन है वो इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट के साथ डील कर रहा है। सो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को जब आप डील करेंगे तो आप डील करेंगे विद ट्रेड एंड ट्रेडिंग रेगुलेशंस जो कि पूरी दुनिया में एक ही हैं। इसमें आपकी जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है वो हो सकती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में और दूसरे इदारों में, इंक्लूडिंग टास्क फोर्सेस जो कि काम करती हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में और दूसरे रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस लाइक ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, लाइक पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, सिंध रेवेन्यू अथॉरिटी। सो ये तो बात हो गई हॉरिजॉन्टल मूवमेंट की। वर्टिकल मूवमेंट की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर आपके पास बहुत सारे एवेन्यूज़ ओपन हो जाते हैं स्कॉलरशिप्स के लिए। जैसे मैं खुद एक डिग्री मैंने इंग्लैंड से की एज अ शीवनिंग स्कॉलर, जिसमें मैंने पब्लिक पॉलिसी, ट्रेड गवर्नेंस, ट्रेड रेगुलेशंस, इसके ऊपर मैंने मास्टर्स डिग्री करी और उसके ऊपर फर्दर काम किया। उसके बाद देयर आर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक UN, WTO, WCO, UN ट्रेड प्रोजेक्ट,
इसके साथ बहुत सारे मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ट्रेड रिलेटेड काम करती हैं, तो वहाँ पे आपका स्कोप डेवलप हो जाता है। एट द सेम टाइम आपको पता होना चाहिए कि FATF के अंदर से जब पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में आया था और उसके अंदर निकला था, तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा रोल कस्टम ऑफिसर्स का था, जिन्होंने पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग रिजीम लेके आए, यहाँ पर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशंस किए, और उसके हवाले से भी क्योंकि FATF अपनी पावर्स ड्रॉ करता है UN रेजोल्यूशन से, तो एज ए कस्टम्स ऑफिसर यू आर एक्सपोज टू मैनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंटरनेशनल वर्किंग। सो दैट इज इट फॉर दी हॉरिजॉन्टल एंड दी वर्टिकल मूवमेंट जो कि आप कस्टम्स के साथ देख सकते हैं। अगर हम ग्रेड्स की बात करें तो पाकिस्तान कस्टम्स में लाइक अदर सिविल सर्विस एंड ब्यूरोक्रेसी सेटअप्स, आपका स्टार्ट होता है इन ग्रेड 17 एज असिस्टेंट कलेक्टर, और फिर आप मूव करते हैं टू डिप्टी कलेक्टर। और पाकिस्तान कस्टम्स में एक आपके व्यूअर्स के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि 17 ग्रेड और 18 ग्रेड में काम की नौयत में कुछ बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जो हमारा लीगल फ्रेमवर्क है वो तकरीबन सिमिलर पावर्स देता है असिस्टेंट कलेक्टर्स को और डिप्टी कलेक्टर्स को। ज़्यादा फ़र्क आता है 19 ग्रेड में, जब आप प्रमोट हो जाते हैं एज एडिशनल कलेक्टर। वहाँ पर फिर एडिशनल कलेक्टर को कहा जाता है कि एडिशनल कलेक्टर इज़ ए कलेक्टर इन प्रेपरेशन, और एडिशनल कलेक्टर की मार्क जो है वो स्किल्स होती हैं, उसको एज सेक्रेटरी पोस्ट किया जा सकता है FBR में, एडिशनल डायरेक्टर के तौर पे पोस्ट किया जा सकता है डायरेक्टरेट्स में, एंड देन फाइनली इन ग्रेड 20 वी हैव द डेजिग्नेशन ऑफ कलेक्टर, जो कि हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसकी अक्रॉस द बोर्ड पावर्स होती हैं। और इसी तरह आपकी ग्रेड 21 में देन यू बिकम आइदर अ DG, डायरेक्टर जनरल ऑफ ए डायरेक्टरेट, या फिर चीफ कलेक्टर ऑफ ए फिजिकल ज्यूरिसडिक्शन विद इन पाकिस्तान। और अगर मैं पीक की बात करूं तो पाकिस्तान कस्टम्स के ऑफिसर्स जो हैं वो रेगुलरली ग्रेड 22 तक पहुंचते हैं, एंड देन दे गो टू अदर ऑर्गेनाइजेशंस, दे सर्व एज फेडरल सेक्रेटरीज, और दे प्रेफर टू गो इन ऑर्गेनाइजेशन जिनका ताल्लुक कस्टम्स के साथ या ट्रेड के साथ है। तो दैट इज़ इट कि पाकिस्तान कस्टम्स के अंदर लाइक अदर ऑर्गेनाइजेशंस आप ग्रेड 22 तक जा सकते हैं। सर ये बताइएगा कि एक कस्टम ऑफिसर को किस किस्म के प्रेशर्स हैंडल करना पड़ते हैं? प्रेशर्स की अगर हम बात करें तो देख, जैसे हमने हमारी पहले गुफ्तगू हुई कि पाकिस्तान कस्टम्स में यू हैव 2 मेन स्ट्रीम्स। आप फैसिलिटेशन और अप्रेजमेंट के रोल में हैं, जहाँ पे आप ड्यूटीज एंड टैक्सेस ले रहे हैं, और दूसरा रोल आपका इन्फोर्समेंट का है। इन्फोर्समेंट की रोल की अगर मैं बात करूं तो प्रेशर्स बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि पाकिस्तान की अंदर जो स्मगलिंग के रूट्स हैं जो वो बहुत पुराने कई 100 साल से इस्टेब्लिश्ड हैं, उन स्मगलिंग के रूट्स को चेक करना, स्मगलर्स के साथ लड़ना, उनको इंटरसेप्ट करना विद लिमिटेड रिसोर्सेज, विद लिमिटेड फंड्स इज़ डेफिनेटली द बिगेस्ट प्रेशर। उसके बाद देयर आर अदर प्रेशर्स, जिस तरह के आपके वर्कलोड, आपकी जो एक्सपोर्ट की जो कलेक्ट्रेट्स हैं वो 24 आवर्स चलती हैं। आप गौर करें कि एयरपोर्ट्स के ऊपर देयर इज़ नो टाइम लाइन, आप 24 आवर्स यू आर ऑन द जॉब। अगर आप असिस्टेंट कलेक्टर एयरपोर्ट पोस्टेड हैं तो आपका 9 to 5 जॉब नहीं है। जो आपकी फ़्लाइट्स हैं वो रात को 2:30 बजे भी आएंगी, 5 बजे भी आएंगी, और उसके अंदर फिर आपके ऊपर प्रेशर्स जो है ना वो बढ़ते जाएंगे। लेकिन एट द सेम टाइम जिस तरह बाकी दूसरी सर्विसेज में होता है, पाकिस्तान कस्टम्स बीइंग पार्ट ऑफ FBR, इसके अंदर पॉलिटिकल प्रेशर्स नहीं हैं, वर्कलोड के प्रेशर्स हैं, फंड्स के प्रेशर हैं। यहाँ पर प्रेशर है ऑफ हैविंग लेसर रिसोर्सेज, लेसर मैन पावर। अदर देन दैट, अगर आप स्मगलिंग साइड की बात करें तो येस अगेन इट इज़ नॉट स्पेसिफिकली अ 9 to 5 जॉब, और एज ए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी completely different from inland revenue service, पाकिस्तान कस्टम्स इज़ ए यूनिफॉर्म्ड फोर्स। तो यूनिफॉर्म्ड फोर्स के जो भी चैलेंजेस हैं वो पाकिस्तान कस्टम्स में आपको फेस करने पड़ेंगे। यहाँ तक कि आपके शायद इल्म में हो कि 38th कॉमन के अब्दुल कुद्दूस शेख को शहादत का रुतबा मिला था, और हर साल तकरीबन 10 से 20 और मोर देन दैट हमारी शहादतें होती हैं पाकिस्तान कस्टम सर्विस की वर्कफोर्स की इन फाइटिंग द मेनेस ऑफ स्मगलिंग। सो ये चैलेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कस्टम्स में।
जैदी साहब, पाकिस्तान कस्टम सर्विस के कुछ पर्क्स एंड प्रिविलेजेस के हवाले से भी बता दीजिए। जी, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस की अगर हम बात करें तो उसमें मैं 3-4 चीज़ें बता सकता हूँ। सबसे पहले तो यू विल बिकम ए वेरी कॉन्फिडेंट एंड अ वेरी डायनामिक ऑफिसर। पाकिस्तान कस्टम सर्विस अपने असिस्टेंट कलेक्टर से लेके कलेक्टर को कॉन्फिडेंस सिखाता है, बिकॉज आप एयरपोर्ट पर खड़े हैं, एक फ़्लाइट लैंड हुई है और आपको सामने से आता हुआ शख्स नज़र आ रहा है कि ये स्मगलर हो सकता है, नारकोटिक्स कैरी कर सकता है, गोल्ड करेंसी कैरी कर सकता है, तो आपने देयर एंड देन डिसीजन लेना है। आपके पास फाइल खोलने का टाइम नहीं है। तो सबसे बड़ा जो पर्क और प्रिविलेज है वो कॉन्फिडेंस है। दूसरी बात जो कस्टम्स आपको सिखाएगा वो आपको डिसिप्लिन सिखाएगा। ये एक इसका पर्क और प्रिविलेज है कि आप एक यूनिफॉर्म पहनेंगे, आप शाना बशाना काम करेंगे अदर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के साथ, इंटेलिजेंस इदारों के साथ, और आप कनेक्टेड होंगे और आप वेल इन्फॉर्म्ड होंगे। आपको पता होगा कि इस वक्त आपके बॉर्डर्स पर क्या हो रहा है, आपके मुल्क में क्या हो रहा है। कोई भी कस्टम ऑफिसर इस वक्त ऐसा नहीं होगा कि जो आपको पूरे मुल्क के मसाइल, उनके हल के बारे में आपको डिटेल्ड रिपोर्ट नहीं दे सकेगा। मैं अगर अपनी पर्सनल मिसाल दूं तो मैंने ड्यूरिंग मिड कैरियर मैनेजमेंट कोर्स एक स्मगलिंग के ऊपर रिसर्च पेपर लिखा था जो कि पाकिस्तान के इंटरनेशनल गज़ट में छपा था। इसके अलावा जो पर्क्स आपको मैं बता सकता हूँ कि आपको प्रेस्टीज मिलेगी, आपको एक्सपोजर मिलेगा, आपको बहुत सारे लोग आपको जानेंगे, आप उनको जानेंगे। बिजनेस कम्युनिटी से लेकर आपकी दूसरे गवर्नमेंट के महकमे आपके साथ काम करेंगे। जब आप एयरपोर्ट पर होंगे तो आप FIA, ASF, ANF हर इदारे के साथ आपकी इंटरेक्शन होगी, आपकी एक जो है ना कैपिटल स्टैंडिंग होगी। दूसरी बात यह है कि आपको एक और प्रिविलेज ये होगा कि आपके पास ड्यू टू योर नेचर ऑफ योर ऑपरेशंस आपके पास बैठने की जगह होगी, आपको अच्छे दफ्तर भी मिलेंगे, आपको अथॉरिटी भी मिलेगी, आपको कन्वेंस ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि आप फील्ड ऑफिस होंगे, आपको ऑपरेशंस के लिए जाना पड़ेगा, आपको स्क्वाड के साथ मूव करना पड़ेगा, आप वर्दी भी पहनेंगे, आप ऑपरेशंस के लिए निकलेंगे भी। और इसके साथ साथ FBR की अगर हम बात करें तो FBR की सैलरीज जनरली बाकी महकमों से कुछ बेहतर हैं, जिसमें FBR अलाउंस आपको मिलेगा। अगर आप इस्लामाबाद हेडक्वार्टर में पोस्टेड हैं तो आपको एग्जेक्टिव अलाउंस भी होगा, तो आपकी सैलरी आपके जो काउंटर पार्ट हैं दूसरे महकमों में उनसे कदरे आपकी जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं वो ज़्यादा होंगे। इसके बाद आपको मैं बताऊं कि जो पाकिस्तान कस्टम्स की अपनी काविश है उसको हम कहते हैं सेंट्रल कस्टम्स कॉमन पूल फंड, जिसके तहत आपको यूटिलिटीज़, आपके मेडिकल की कवरेज भी किसी हद तक मिलेगी और उसके रूल्स ड्यूली फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से पास्ड हैं और आपके हर मामले के अंदर आपका डिपार्टमेंट आपको हेल्प आउट करेगा। एक चीज़ आपको और बताऊं कि पाकिस्तान कस्टम्स एक बहुत छोटा कैडर है। आप किसी और सर्विस में जाते हैं तो IRS में या पुलिस में जो कैडर स्ट्रेंथ है फ्रॉम 17 to 21 to 22 वो कुछ हज़ार में हो सकती है, लेकिन आपको मैं ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान कस्टम सर्विस के टोटल अफसरान फ्रॉम ग्रेड 17 to 21 आर लेस देन 500। सो यू आर बेसिकली ए पार्ट ऑफ अ फैमिली वेयर आप सबको जानते पहचानते होंगे और आपको सब जानते पहचानते होंगे। तो दीज आर सम ऑफ द पर्क्स दैट आई कैन पॉइंट आउट। सर लास्टली इस पे कमेंट कीजिएगा कि ये जो नए एंट्रेंट्स इस सर्विस में आना चाहते हैं उनके लिए कुछ गाइडेंस क्या है? न्यू एंट्रेंट्स के लिए मैं गाइडेंस ये देना चाहूँगा कि अगर आप एक नौकरी ढूंढ रहे हैं विच इज़ नॉट जस्ट अ सर्विस बट अ वे ऑफ लाइफ, जहां आपकी कुछ पोस्टिंगों के ऊपर 9 to 5 की कैद नहीं है, वहां पर आपकी जान, आपका टाइम, हर चीज़ दांव पे लग सकती है। आप अगर एक डायनामिक सर्विस का पार्ट बनना चाहते हैं जहां पे आप गवादर से लेके आज़ाद कश्मीर तक, लैंड बॉर्डर स्टेशन, तुरखम, ताफ्तान, कराची, लाहौर, पेशावर, आप कहीं पे भी पोस्ट हो सकते हैं और हर जगह आपको ये पता है कि हुकूमत पाकिस्तान के पास जितने भी फंड्स अवेलेबल हैं उसका 52% आपकी सर्विस इकट्ठा कर रही है, तो फिर कस्टम्स को ज़रूर ज्वाइन करें। इट इज़ ए वे ऑफ लाइफ, इट इज़ नॉट अ जॉब और इट इज़ वेरी डायनामिक। आप अगर इंडिपेंडेंट सर्विस को ज्वाइन करना चाहते हैं जहां पे आप ना सिर्फ
लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, आप साथ में इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, ऑडिट, ट्रेड, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, हर चीज़ के ऊपर अगर आप ग्रिप रखना चाहते हैं तो यू आर मोर देन वेलकम टू ज्वाइन कस्टम सर्विस। और अगर आपके जहन में एक टिपिकल 9 to 5 जॉब है जहां आप ऑफिस आते हैं, कुछ फाइलें साइन करते हैं और घर चले जाते हैं, देन कस्टम सर्विस इज़ प्रॉबेबली नॉट फॉर यू। थैंक यू। थैंक यू।